A very good day to one and all. Today we are here with our next part of similar triangles, that is part 6. As you have done with me in the previous class, we had taken up the proof of Pythagoras theorem, and today we are going to move to exercise 6.5 of our NCERT text so that we can do some questions of applications of Pythagoras theorem and its converse. Before I start with the uh, questions of exercise 6.5, let me explain the converse of Pythagoras theorem to you. The proof of this theorem is no longer part of the syllabus for this year because of the lockdown, and I'm just going to explain the statement to you. Converse of Pythagoras theorem. ये कहती है कि अगर किसी ट्रायंगल में अगर आपको ये पता चल जाए कि ट्रायंगल की कोई दो साइड्स के सम का स्क्वायर ट्रायंगल की तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर है, तो एंगल ऑपोजिट द लॉन्गेस्ट साइड इज 90 डिग्रीज. मीन्स मान लीजिए इफ यू कम टू नो दैट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, देन angle opposite AC is 90 degrees. That is, angle B is 90 degrees. So I repeat the statement once again. In a triangle, if the sum of the squares of any two sides is equal to the square of the third side, then angle opposite the third side, that is the longest side, is 90 degrees. And in any triangle, we know that if one angle is 90 degrees, then it is a right triangle. So this was all about converse of Pythagoras theorem, and straight away we are moving to exercise 6.5, question number 1 now. Question number 1 says, sides of triangles are given below. Determine which of them are right triangles, and in case of right triangle, write the length of its hypotenuse. I am taking one part out of the 4 parts with you, and then you'll be in the position to take up the rest of the parts. In the first part, they have given us a triangle in which the three sides are 7, 24 and 25 centimeters each. Sides of in a triangle. This is exercise 6.5. Question number 1. In triangle, in given triangle, let sides be 7 meters, 20 centimeters rather, 24 centimeters and 25 centimeters. हमें ये बताना है कि क्या ये तीन साइड्स किसी राइट ट्रायंगल के हैं या नहीं. अगर वो राइट ट्रायंगल के हैं तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा. सो लेट्स फाइंड आउट द स्क्वायर्स ऑफ ऑल द थ्री साइड्स. 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49. 24 का स्क्वायर क्या होता है? दिस इज 576. और 25 का स्क्वायर क्या होता है? दिस इज 625. अब आप चेक कीजिए किन्हीं दो को ऐड करके तीसरा आ रहा है या नहीं. इन दोनों को ऐड करके तो ये नहीं आएगा, सो दिस ऑप्शन इज गॉन. इन दोनों को ऐड करके भी ये नहीं आएगा, बट इन दोनों को ऐड करके 625 आ रहा है. तो यू कैन पेन इट डाउन दिस वे. नाउ 49 प्लस 576 is equal to 625. This implies 7 square is plus 24 square is equal to 625 is equal to 25 square. Since squares of sum of the squares of two sides, sum of the squares of two sides is equal to square of the third side, therefore by converse of Pythagoras theorem, side opposite 25 centimeter is angle opposite 25 centimeters is 90 degrees. Hence, given
measures are of a right triangle, and as you all know hypotenuse is the longest side. उन्होंने कहा था कि अगर ट्राइंगल राइट है तो उसका हाइपोटेन्यूज भी बताइए, तो सबसे लंबी साइड 25 सेंटीमीटर है, सो हाइपोटेन्यूज ऑफ गिवन राइट ट्राइंगल इज 25 centimeters. This is how you have to answer. This was the second part and this was the first part. This is how the algorithm has to be followed. Note down the steps so that we can move to the next one. Now we are moving on to question number 2 of exercise 6.5. अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है. The statement says PQR is a triangle, right angled at P. Okay, पहले हम इतना बनाते हैं. PQR is a right triangle, right angled at P. तो हम PQR ऐसे नाम भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं. I'm keeping it like this. Then they say M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. तो क्या हो रहा है? M is a point on QR such that PM is perpendicular to QR. शायद ये पढ़ने के बाद आपको प्रॉपर्टी याद हो रही हो. राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे गिरा दिया गया है और हमें वो कह रहे हैं शो करो कि PM square is equal to QM into MR. So let's pen down the given. In right triangle RPQ, right angled at P, PM is perpendicular to QR. ये हमें given है. Required to prove is PM square is equal to QM into MR. ये हमारा टारगेट पॉइंट है. प्रूफ पे आएंगे. अब इस चीज तक पहुंचने के लिए हमें अपना थॉट प्रोसीजर क्या रखना है, मैं वो सोचना आपको ढंग यहाँ पे रफ कॉलम में सिखाने लगी हूँ. आपको दिया गया है PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM into MR. आप यहाँ तक तब पहुंचोगे जब आप दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव कर सको. पर कौन सी दो? अगर हम इसको देखें तो ये दो ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं बाय द प्रॉपर्टी एंड ईच ऑफ देम इज सिमिलर टू द बिग ट्राइंगल. तो इस रिजल्ट तक पहुंचने के लिए कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है, वो ट्राइंगल्स का नाम हम इस टेक्निक से जज कर सकते हैं. PM स्क्वायर का मतलब है PM into PM, राइट, और ये है QM into MR. अगर आपको याद हो ये टेक्निक मैंने आपको पहले भी थी. इसकी नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4. अब अगले स्टेप में 1/4 PM अपॉन MR कर दीजिए और 3/2 कर दें. एक्सट्रीम्स और मीन्स को सेपरेट कर दें. कभी कभी इस स्टेप के बाद हमें ऑल्टरनेटिव भी लगाना पड़ता है, तो नो इश्यूज इन दैट. आई थिंक माय चिल्ड्रन आर एफिशिएंट इनफ टू कैरी ऑन विद दैट. अब इस नाम को ध्यान से पढ़िए. M कॉमन है तो ये ट्राइंगल PMR हो गया. PMR यानी ये ट्राइंगल. अब इसको किसके सिमिलर दिखाना है? M कॉमन है, यहाँ पे ट्राइंगल बन रही है QMP. अब ठीक नाम क्या होना चाहिए वो मैं यहाँ से गेस करती हूँ. दिस इज ट्राइंगल PMR और दूसरी है QMP, यानी इसके साथ में छोटी ट्राइंगल. अब इन ट्राइंगल्स के नाम लिखने का ढंग मैंने आपको L के साथ का सिखाया था कि किसी एक एक्सटर्नल वर्टेक्स से शुरू हो जाए, यहाँ से लेके यहाँ तक L बना दो. ये ट्राइंगल का नाम अगर हम RMP रख रहे हैं तो दूसरे का नाम हो जाएगा PMQ. इज दैट ओके? यहाँ पे पूरा का पूरा रिजल्ट आप सबसे पहले लिखेंगे. वी नो दैट या फिर आपको कंफ्यूजन हो तो इस ट्राइंगल जो गिवन ट्राइंगल है इसे मैं दोबारा आपके लिए बना देती हूँ. दिस वाज योर ट्राइंगल RPQ, राइट एंगल एट P and the perpendicular was dropped from P to RQ. We know that
in a right triangle, if a perpendicular is dropped from vertex of right angle to the hypotenuse, it divides the triangle, it divides the given triangle into two similar triangles, each of which is similar to the given triangle. इस रिजल्ट का नाम मान लेते हैं। अब हमने रफ वर्क करके जान लिया कि हमें कौन से दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, इन दोनों को करना है। नाम की टेक्निक हमने सीख ली है। सो इस प्रॉपर्टी की वजह से ट्राइंगल आर एम पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एम क्यू यूजिंग वन। और अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो दिस इंप्लाइज आर एम अपॉन पी एम is equal to Pm upon Qm is equal to Rp upon Pq. Reason is the same. Corresponding sides of similar triangles are in proportion. So what next? हमें वो दो रेशियोज लेनी है जिसमें हमारे पी एम स्क्वायर आ जाए। पी एम स्क्वायर इन दोनों को लेके आ रहा है। So Rn upon Pm is equal to Pm upon Qm. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, हमारे पास आ गया Pm स्क्वायर इज इक्वल टू Rm इंटू Qm। अब चेक कीजिए, ये वैसे ही नेमिंग है जैसे उन्होंने दी थी? नहीं, यहाँ Rm की जगह हमें Mr लिखना है, तो हम वो चीज़ नेक्स्ट स्टेप में और डाल के कर सकते हैं। इज इक्वल टू Qm और Rm की जगह हम Mr लिख देते हैं। सो यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये रहा कि ऐसे किसी स्टेटमेंट को कैसे हम रफ में ब्रेक करेंगे और जानेंगे कि हमें कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करनी है। दूसरी चीज, वी हैव टू स्टेट द कंप्लीट रिजल्ट बिकॉज देयर इज नो नेम गिवन टू दिस रिजल्ट, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू मेक यूज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। गो अहेड विद दिस and then we'll move to the next one. This is an important question which comes under about 2 marks. Now question number 3 after this. Question number 3 कह रहे हैं in figure 6.53. So they have given us the figure as well. In this figure, ABD is a triangle right angled at A and AC is perpendicular to BD. फिर से क्या है, एक right angle के vertex से right triangle में right angle के vertex से perpendicular hypotenuse पे गिरा दिया गया है। It means जो property हमने study किया, हम उसका इस्तेमाल फिर से कर सकते हैं और हमें 3 पार्ट्स प्रूव करने को कहे गए। पिछले क्वेश्चन में हमने एक ही पार्ट किया था, इस पर 3 पार्ट्स किए गए हैं। हमारा सोचने का ढंग वही रहेगा जो हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है। सो मेरे करने से पहले एक बार खुद जरूर ट्राई कीजिए सो दैट यू कैन क्रॉस चेक विद मी। सो आई एम कमिंग अप टू द फिगर पार्ट। फिगर इज गिवन टू अस। वी हैव अ ट्रायंगल एबीडी राइट एंगल्ड एट ए। Triangle ABD right angled at A और इस A से perpendicular has been dropped to the hypotenuse BD at a point C. So what is given to us? This is question number 3. In right triangle BAD right angled at, अब ABD भी लिख सकते थे, right angled at A. AC is perpendicular to the hypotenuse BD. याद रखिए जब उन्होंने कह दिया AC is perpendicular to BD तो ये ऑटोमेटिकली हो गया कि this angle is equal to this angle 90 degrees. अब required to prove में 3 पार्ट्स है, मैं टर्न वाइज हर पार्ट को करूँगी। required to prove part 1
पार्ट 1 में हमें प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी, ये प्रूव करना है। अब जरूरत है थॉट बॉक्स को हिलाने की। मैं रफ कॉलम में जाके आपको थॉट बॉक्स तक लेके जा रही हूँ। थॉट बॉक्स मीन्स थॉट सोचने के ढंग तक पहुंचा रही हूँ। दिस इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। तो ए बी स्क्वायर मीन्स ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। 1 2 3 4 1/4 एक्सट्रीम्स का रेशियो और उसके बाद मीन्स की बी सी अपॉन ए बी। यहाँ से हम ट्राइंगल्स के नाम लेने वाले हैं। एक आगे हमारे पास बी कॉमन है, ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी। ओके, राइट एंगल को बीच में ले लेती हूँ, मैं इसका नाम ट्राइंगल बी ए डी कर रही हूँ। और दूसरी इधर से नाम आ जाएगा, बी कॉमन है तो ये ए बी सी हो गई। ए बी सी यानी ये वाली, एक बड़ी वाली और एक ये वाली। और ए बी सी का ठीक नाम अगर मुझे जज करना है तो बी ए डी अगर मेरे पास ये वाली है बी ए डी, तो बी ए सी को भी अगर सेम तर्ज पे बना दिया जाए तो बी ए सी में जो 90 है दैट इज ऑन सी, तो या ये 90 हो गया। इस बड़ी ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में बी कॉमन है तो बी की जगह यही रहेगी। तीसरा नाम था ए, यानी मुझे ट्रायंगल बी ए डी और बी सी ए सिमिलर करनी है। यहाँ तक पहुँच रहे हैं, ट्रायंगल्स के नाम पता चल गए, वही जिनको करना था और वो भी टेक्निक आपको पता है। इन तीनों पार्ट्स में प्रॉपर्टी सेम यूज होनी है। हम एक ही बार में प्रॉपर्टी लिख लेते हैं जो हम हर बार लिखते जा रहे हैं। प्रूफ, वी नो दैट in a right triangle if a perpendicular is dropped from vertex of right angle to the hypotenuse, it divides the triangle into two similar triangles, each of which is similar to the big triangle, each of which is similar to given triangle या main triangle या big triangle, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ABC इक्वल टू BC इंटू BD तक पहुंचना था। हमने ट्राइंगल्स रफ वर्क पे काम कर लिया है और नाम भी ठीक डिसाइड कर लिए। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से ट्राइंगल बी ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी ए। इस प्रॉपर्टी का नाम 1 रख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग 1। अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर है तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर गोइंग टू बी इन द सेम रेशियो, दैट इज बी ए अपॉन बी सी। मैं ए बी लिख रही हूँ, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी। आप बी ए भी रहने दे सकते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने वही नाम रहने दिए जो हमने अभी तक लिखने का ढंग सीखा है। बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन सी ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन बी ए। अब टारगेट में क्या चाहिए था हमें, बी ए स्क्वायर। यहाँ पे पहले रीजन लिख दीजिए, कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रोपोर्शन। जैसे कि टारगेट के हिसाब से हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, यानी ऐसे दो रेशियोज उठानी जिन्हें ए बी और ए बी स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज, अब मैं बी ए की जगह ए बी लिख रही हूँ। ये इसलिए चेंज किया क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड है कि इस ढंग से अल्फाबेटिकली नेम्ड हो। दिस इज बी डी अपॉन ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू बी डी। यही हमें प्रूव करना था पार्ट 1 में, एंड वी हैव डन इट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में रिक्वायर्ड टू प्रूव है हमारे पास AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। चलिए हम अपने रफ कॉलम पे आते हैं। AC
स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी, यानी ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू डी सी। इनकी नंबरिंग करें 1 2 3 4, सो दिस इज 1/4 इज इक्वल टू 3/2। अब नाम जज करते हैं, यहाँ पे C कॉमन है तो ये ट्राइंगल ADC हो गई, यानी ये वाली, इसमें C90 है तो मैं नाम रख देती हूँ ACD। और उसके सामने किस ट्राइंगल को सिमिलर करना है, दिस इज C कॉमन है, ABC हो गई, ABC यानी ये वाली। इनको नेम करने का ढंग तो हमें आता है ना, हम L की मदद ले सकते हैं। अगर इस ट्राइंगल का नाम मैं DCA रख देती हूँ तो इसका नाम हो जाएगा ACB L के फॉर्म में। सो इसका नाम मैं रख रही हूँ CDCA। मैं फिगर दोबारा से बना के आपको दिखा देती हूँ नाम कैसे रख रही हूँ, क्योंकि इसमें परपेंडिकुलर के आर पार जो दो ट्राइंगल्स थी उनको सिमिलर प्रूव करना है। तो ठीक नाम रखने की टेक्निक जब हमने सीखी थी तो उसमें एल वाला फंडा समझा था। हमें प्रूव करना है ACD, यानी इस ट्राइंगल को सिमिलर टू ABC, यानी ये वाली ट्राइंगल के। तो इस ट्राइंगल का नाम DCA रख देते, L आ गया। तो दूसरी का क्या हुआ, ACD, यानी ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल ACB पे पहुंचना है, ये मेरा टारगेट है। सो व्हाट नेक्स्ट, आई राइट डाउन ट्राइंगल DCA is similar to triangle ACB. This is using 1. अब रिजल्ट 1 को यूज करके हमने ट्राइंगल सिमिलर कर दिया। नाउ वी कैन से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इन द सेम रेशियो। सो DC अपॉन AC is equal to CA upon CB is equal to DA upon AB। और रीजन आपको पता है, corresponding sides of similar triangles are in proportion। अब इनमें से कोई दो रेशियोज को सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे हमें AC स्क्वायर मिल जाएगा। CA यहाँ पे है और AC यहाँ पे, एक ही बात है, AC और CA हम इन दोनों को ले लें। सो दिस इम्प्लाइज DC अपॉन AC, यहाँ पे हम CA की जगह AC लिख देते हैं, अपॉन CB की जगह BC लिख देते हैं क्योंकि BC में बात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वी गेट AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज डन। इस सेकेंड पार्ट में प्रूव करना था। आई एम नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। ये 3 पार्ट्स करते हुए हमें बिल्कुल वो टेक्निक आ जाएगी जिससे हम ट्राइंगल सिमिलर जल्दी डायग्नोज कर लेते हैं। सो द थर्ड पार्ट required to prove is AD square is equal to BD into CD। आइए हम अपने रफ कॉलम पे पहुंचते हैं। देखिए कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर कर दिए। दिस इज AD square is equal to BD into CD। ये हमारा थॉट बॉक्स है जिसे हम रफ वर्क या रफ ड्राफ्ट कह सकते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट है इन द फेयर, बिकॉज अगर ये सही हुआ तो हमारा फेयर वाला हिस्सा ठीक होगा। So this is AD into AD is equal to BD into CD। अब इनकी नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4। 1/4 is equal to 3/2। और ये जो मैं आपको टिप दे रही हूँ ना, 1/4 is equal to 3/2, मोस्ट ऑफन ये काम करती है। और अगर ये यहाँ पे लगे कि नहीं काम कर रही, मीन्स इस नेक्स्ट स्टेप के बाद आपको ऑल्टरनेटो लगाना है। सो यहाँ से नाम देखिए डी कॉमन है, तो दिस इज ट्राइंगल ADC। ADC यानी ये वाली, तो इसमें C90 में इस ट्राइंगल का नाम DCA रख देती हूँ। DCA को किसके सिमिलर करना है, ABD के, यानी बिग ट्राइंगल के। तो छोटी वाली को बिग ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करने की टेक्निक हमने क्या सीखी थी कि छोटी वाली भी बना लो एक और उसी तर्ज पे बड़ी वाली बना लो। DCA में C90 है, D बड़ी वाली ट्राइंगल में भी आ रहा है और DCA में भी आ रहा है, तो D की पोजीशन वही रहेगी। तीसरा बचा A। अब दिस इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABD। ABD यानी बिग ट्राइंगल में एंगल A इज 90, तो यहाँ पे A आ गया। D दोनों में सेम है, D की जगह वही रही, तीसरा अल्फाबेट बना था B, सो इट इज ओवर हियर।
इसका नाम कैसे होगा? अगर ये DCA रखा है तो इसका नाम DAB होगा। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। These are the correct names. करेक्ट नेम रखना सिमिलर ट्राइंगल्स का बहुत जरूरी है, वरना it takes a lot of time to take the proofs. So using one triangle DCA is similar to triangle DAB using one. राइट, ये वन रिजल्ट जिसकी हम पहले बात कर रहे थे। अब चूंकि ट्राइंगल सिमिलर हो चुकी है, सो corresponding sides are in the same ratio. BC upon DA is equal to CA upon AB is equal to DA upon DB. Reason is same old. Corresponding sides of similar triangles are in proportion. अब move to the target. कौन से दो रेशियो लेने से आपको AD स्क्वायर मिलेगा? Obviously these two. So I'm writing down in the order they have said. DC उन्हें CD की तरह चाहिए और DB उन्हें BD की तरह चाहिए। तो इन दोनों को लेते हुए मैं इसे CD और इसको AD लिख रही हूँ, और इसको लेते हुए मैं इसे AD और इसे BD लिख रही हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास AD स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू CD आ जाता है, और यही हमें प्रूव करना था। सो दिस इज हाउ वी हैव टू टेक ओवर द स्टेप्स, एंड दिस इज योर थॉट बॉक्स। अगर आपके थॉट बॉक्स में गलती हो गई तो आपका फेयर ठीक नहीं होगा। तो जब भी ऐसी कोई इक्वेशंस आ जाए आपके पास, तो कैसे ट्राइंगल्स के नाम डायग्नोज करते हैं, वो टेक्निक आपके पास है। You have to keep this technique in mind. Technique learning is more important than taking out the solution. So please take it down properly. Now we are moving on to question number 4. से 6.5 है ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। व्हाट इज द क्वेश्चन सेज ABC is an isosceles triangle, right angled at C, and we have to prove that AB square is equal to twice of AC square. ABC is an isosceles triangle, right angled at C, यानी isosceles triangle right angle है। तो हाइपोटेन्यूज सबसे लंबी साइड होती है, तो दो साइड्स जो इक्वल होंगी वो बाकी दो बची। इट मींस दिस इज इक्वल टू दिस, और ट्राइंगल का नाम क्या था? ABC, राइट एंगल एट C है, तो CAB भी रख सकते हो, ACB भी रख सकते हो, एंड टेक इट दिस वे। नाउ इन राइट ट्राइंगल ACB right angled at C, AC is equal to BC, this is given. हम ये मानकर चलेंगे, उन्होंने कहा था isosceles triangle right angled at C। चूंकि हाइपोटेन्यूज से सबसे लंबी साइड है, तो वो तो किसी के भी बराबर भी हो सकती है, तो बाकी दो जो साइड्स बचे ट्राइंगल की वही दो इक्वल होंगी। सो दिस इज बाय गिवन ओनली, एंड रिक्वायर्ड टू प्रूव इज AB square is equal to twice of AC square। ये हमें प्रूव करना है। हम प्रूफ पे पहुंचते, राइट ट्राइंगल की बात हो रही है और पाइथागोरस ना हमारे पास आए, ऐसा तो होता नहीं, तो हम उनके इस्तेमाल करने लगे पाइथागोरस थ्योरम का। इन राइट ट्राइंगल ACB right angled at C, AB square is equal to AC square plus BC square. This is by Pythagoras theorem. नाउ टारगेट को हमेशा ध्यान में रखिए, आपको ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर चाहिए, तो BC इज इक्वल टू AC है यहाँ आपके पास, तो BC की जगह AC डाल दीजिए। BC स्क्वायर था तो ये AC स्क्वायर हो गया। रीजन देखते हैं, सिंस BC इज इक्वल टू AC बाय गिवन,
सो ये क्या बन गया, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूफ, दिस वाज अ वेरी शॉर्ट प्रूफ, पर इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं अंडर 1 मार्क और 2 मार्क्स। टेक डाउन। Let's move to the question number 5. अब ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, it states that ABC is an isosceles triangle with AC is equal to BC। इस बार एक isosceles triangle दी है जिसमें दो साइड्स को उन्होंने नेम कर दिया जो इक्वल है, और फिर वो कह रहे हैं AB square is equal to twice of AC square, prove that ABC is a right triangle। हमें एक ट्राइंगल जिसके कुछ फीचर्स हमें दिए गए उससे राइट ट्राइंगल प्रूव करना है, यानी इस ट्राइंगल के हमें कोई एक एंगल 90 प्रूव करनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमें कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम की मदद लेनी होगी। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल AC is equal to BC, ये दिया है हमें। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। In triangle ACB, AC is equal to BC, this is given। इसके अलावा उन्होंने एक चीज हमें और दी है, AB square is equal to twice of AC square, and required to prove is triangle ACB is right triangle। तो चलिए प्रूफ पे आते हैं। हमारा गिवन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लू होता है, इनका इस्तेमाल हमने करना है इस टारगेट तक पहुंचने के लिए। पहले मैं इसे उठाती हूँ, AB स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर हमें दिया गया है। ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर का मतलब होता है AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, राइट। अब दूसरी क्लू की मदद लें, AC इज इक्वल टू BC है, तो एक AC की जगह पे BC लिख देती हूँ, इसकी जगह पे मैं BC लिख रही हूँ। अब फिगर में देखिए क्या जा रहा है, फिगर में जा रहा है AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यानी ट्राइंगल में किसी एक साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। सो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, साइड ऑपोजिट AB, सबसे लंबी वाली साइड के सामने वाली एंगल 90 होती है ना, AB is 90 degrees, therefore triangle ACB is right angle at C। So this is what we were required to take up as a proof for this problem. Take it down. Now after this we'll move to the next question. This is question number 6. Question number 6 कहता है ABC is an equilateral triangle of side 2A, find each of its altitude। याद रखिए किसी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ सेम होती है, बिकॉज इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस होता है और सारी साइड्स इक्वल होने की वजह से हाइट की लेंथ सेम रहती है। आई विल टेक अप द फिगर विथ यू। ट्राइंगल ABC is an equilateral triangle whose each side is given to be 2A units, यानी AB, AC और AB तीनों के तीनों 2A यूनिट्स के बराबर। We have to find the length of each of the altitudes। मैं आपको altitudes शो करती हूँ। Draw AD perpendicular to BC, draw BE perpendicular to AC, and draw CF perpendicular to। You have to find the length of
AD, BE and CF, and we know that length of all the altitude is same in a given equilateral triangle. So if we find any one of them, the others will automatically follow. And let's now first take up the given part. In equilateral triangle ABC, AB is equal to BC is equal to CA is given to be 2A units. AD is perpendicular to BC, BE is perpendicular to AC, and CF is perpendicular to AB. Why? Because AD, BE and CF are altitudes by degree. And what is an altitude? It is a perpendicular from the vertex to the opposite side. Required to prove, required to find length of each altitude. Yani we have to find AD, we have to find BE, we have to find C. Proof. अब कुछ चीजें हम एज अ प्रॉपर्टी ले रहे हैं और इनका प्रूफ हम जूनियर क्लासेस में कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल हमने जूनियर क्लासेस में प्रूफ किया हुआ है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ऑलवेज बाइसेक्ट्स द बेस, और उसे हमने कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव किया था. आपको नहीं थोड़ा सा ध्यान रहे या कंफ्यूजन हो तो हम एडी ऑल्टीट्यूड को कंसिडर करके अपना सारा काम करेंगे. तो एडी को अगर मैं कंसिडर करती हूँ, जस्ट ड्रॉ इट विद द रेड पेन सो दैट यू आर क्लियर विद दिस. अगर मैं एडी ऑल्टीट्यूड को कंसिडर करती हूँ तो ट्राइंगल एडीसी और एडीबी हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स रहेंगे बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन. तो चूंकि वो हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट होती है तो ये प्रॉपर्टी ले ली गई है कि इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल्टीट्यूड बाइसेक्ट्स द बेस, राइट. इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, BD is equal to CD is equal to half of BC. Why? In an equilateral triangle, altitude या perpendicular bisects the base. इसका मतलब BD is equal to CD is half of 2A, क्योंकि BC हमारे पास 2A थी तो BD is equal to CD कितना हो गया? A यूनिट्स. अब फिगर में आ जाइए, यानी ये दोनों, ये BD भी A हो गई और CD भी A हो गई. अब मैं इस ट्राइंगल को लेती हूँ ADC को. जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक राइट ट्राइंगल और इसमें से AD की लेंथ पाइथागोरस से बड़े आराम से ढूंढी जा सकती है. इन राइट ट्राइंगल मैं ADB भी ले सकती थी क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी हूँ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं. सो इन राइट ट्राइंगल ADC बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AD square plus CD square. AC square हमारे पास है 2A का स्क्वायर. AD हमें फाइंड करना है क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड है. अब CD हम फाइंड कर चुके हैं, ये A स्क्वायर होगी. सो व्हाट इज AD स्क्वायर? दिस इज 4A स्क्वायर क्योंकि 2A का होल स्क्वायर इज 4A स्क्वायर एंड दिस इज प्लस A स्क्वायर. दिस साइड इधर आके माइनस A स्क्वायर हो गया. ये 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स. हमारे पास AD कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √3 into A, but no side of a right triangle is negative. Of a right triangle is negative. Therefore, AD is √3 into A. अब आप यहाँ पे रीजन दे सकते हैं. Now, AD is equal to BE is equal to CF. This is equal to √3 into A. Reason लिख लीजिए. Since length of altitudes
in the same equilateral triangles are always equal. Are always equal. और यही हमें फाइंड करना था. What is the length of AD, PE and CF? So length of each altitude is equal to √3 into A. This is dot. Dot stands for into. Into means multiply. आप इन्हें डॉट के भी लिख सकते हैं. Units. Just note it down. After this, I am taking with you question number 7. Question number 7 क्या कहता है? Let's read out the statement. It says that prove that the sum of the squares of the sides of a rhombus is equal to the sum of the squares of its diagonals. Now let's first draw the rhombus and see what exactly they are asking us to do. हमारे पास एक rhombus है. आप सभी को पता है rhombus is a parallelogram with two special properties. First, all sides of the सारी 5 प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम के इसके पास है ही है. इसके अलावा डायगोनल्स ऑफ द दिस रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. ये जो डायगोनल्स हैं दे ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर. बाइसेक्ट तो सब पैरेललोग्राम के करते हैं ना. AO is equal to OC, BO is equal to OD. रोम्बस की खास बात है कि इसके डायगोनल्स से बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, यानी O पे ये जो 4 एंगल्स हैं सारी की सारी 90 की हैं. और दूसरी खास बात रोम्बस में ये हो जाती है पैरेललोग्राम की कि इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है. एक जनरल पैरेललोग्राम में ओनली ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, बट इन रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. तो ये दो खास प्रॉपर्टीज की हमें जरूरत पड़ेगी. सो कीप देम इन माइंड. सो व्हाट आर वी गिवन इन रोम्बस ABCD? We have to prove that sum of the squares of the sides of the rhombus, यानी AB square plus BC square plus CD square plus DA square is equal to the sum of the squares of its diagonals, यानी is equal to AC square plus BD square prove करते हैं. Now this is your target. बेसिकली ये चारों साइड्स बराबर है. हम इन्हें ए लेके कोई भी कर सकते हैं या हम लास्ट स्टेप में भी इंक्लूड कर सकते हैं, चाहे तो बिगनिंग में भी कर सकते हैं. वी नो नाउ प्रूफ. वी नो दैट इन अ रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. अगर ये प्रॉपर्टी है तो लेट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CT इज इक्वल टू DA को हम A मान लेते. ये मानना या ना मानना आपकी चॉइसेस के बिना भी काउंट हो जाते हैं. अब दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास रोम्बस की है. ऑल्सो इन अ रोम्बस डायगोनल्स बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स. डायगोनल्स बाइसेक्ट, इसे मैं 2 कलर से लिखने लगी हूँ. बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स, क्योंकि ये सेंटेंस 2 चीजें सिग्निफाई कर रहा है. जब हम कहते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट मीन्स तो हमें कह रहा है कि AO इज इक्वल टू OC इज हाफ ऑफ AC एंड BO इज इक्वल टू OD इज हाफ ऑफ BD. और जब वो कहता है डायगोनल्स बाइसेक्टेड राइट एंगल्स, तो वो क्या है हमें कहने की कोशिश कर रहा है. उसका मतलब हो जाता है एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल COD
इज इक्वल टू एंगल AOD या DOA, जो भी आप लिखना चाहें, दिस इज 90 डिग्रीज. So this all comes from the only word that is rhombus given to us. अब हमारे पास ये चारों एंगल्स हैं, यानी कि चारों एंगल्स राइट ट्रायंगल्स हो गए ना, तो हम क्यों ना पाइथागोरस की मदद लें. हम इनमें से कोई एक राइट ट्रायंगल उठा लेते हैं. मैं राइट ट्रायंगल AOB उठा रही हूँ. In right triangle AOB, right angled at O, AB square is equal to AO square plus BO square या OB square, कुछ भी कह सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम. सो लेट्स डिलीट इट. AB स्क्वायर को हमने A स्क्वायर ले लेते हैं क्योंकि हमें AB को A माना है. यहाँ पर AO क्या है? AO इज हाफ ऑफ AC. अगर AO स्क्वायर इट मींस हाफ ऑफ AC का स्क्वायर हो रहा है ना. अब BO क्या है? दैट इज हाफ ऑफ BD. BO स्क्वायर मींस हाफ ऑफ BD का स्क्वायर हो रहा है. दिस ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट हो गया. अगर आप ब्रैकेट नहीं डालेंगे तो कोई ना कोई कंफ्यूजन रहेगी. सो A स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन 4 plus BD square upon 4. So next step is taking out LCM. This is AC square plus BD square upon 4 आ गया हमारे पास. 4 को उधर ले जाए तो ये 4A square is equal to AC square plus BD square आ गया. अब 4 into A square का क्या मतलब होता है? A square plus A square plus A square plus A square. This is what I am going to pen down. और हमने क्या माना था? व्हाट इज ए? ए इज AB, BC, CD एंड DS सिंस ऑल द साइड्स ऑफ द रोम्बस आर इक्वल. तो एक ए की जगह मैं AB लिख देती हूँ, दूसरे ए की जगह BC लिख दूंगी, तीसरे ए की जगह CD लिख दूंगी और चौथे ए की जगह DA लिख देती हूँ या AD. और यही हमें प्रूव करना था. लुक एट नाउ, रिक्वायर्ड टू प्रूव. दिस वाज आवर टारगेट, हेंस प्रूव्ड. So don't only emphasize on taking the proofs and the solutions in mathematics. टेक्निक सीखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, बिकॉज ज़रा सा क्वेश्चन को एप्लीकेशन फॉर्म दे दी जाए तो हमारे लिए सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है. सो डू टेक अप वॉट आर द थॉट बॉक्सेस आई एम गिविंग टू यू, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग while giving down the solutions. So please note this down, and this will be the last solution and the question with us for today's class. We'll continue with the next video. Thank you.